trading day. Market is dipping. Market is boring as 26.6 पे आ गए हम लोग. उफ, देखो अब कहाँ तक गिरते हैं. 26 अब next support 26.3 है. Let's see. 4 hours पे it's bearish. Daily पे bullish. Okay. Daily पे 20 MA is had breakthrough, crossed over 200 EMA. So it's bullish. लेकिन what I'm seeing is जो कि Bitcoin is weakening ahead of potential multiple ETF approvals. No ETFs are in line to get approved. Hopefully. Walaikum salam, Hassan. I'm good, thank you. Hope you're doing good. I'm good, Mariam. Thank you. Walaikum salam, Hassan. Mariam, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी trading? Been trading? Okay. Abu Bakr or thank you, Abu Bakr, for joining. Ehsan, thank you for liking the live. Keep liking, keep sharing the live. Share भी किया करो. Sharing is caring. Sharing is caring. तो ये Bitcoin के spot ETF approvals I think now in line होगा. उसके ahead जो है what we are seeing Bitcoin weakening और यही मेरा ख्याल है कि it will weaken ताकि जो है market makers, whales like hedge funds accumulate करें. So I think that's what's gonna happen. तो अगर तुम लोगों को याद हो, तुम लोग कुछ दिनों से मेरे साथ हो, महीनों से मेरे साथ हो, तो मैं तुम लोगों को यही कह रही थी जब बिटकॉइन 29,000 का था, 28,000 का था कि they will not let this price stay there. नीचे गिराएंगे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑलवेज ग्रीन मंथ्स. नीचे गिराएंगे थोड़ा सा एंड देन दे आर गोइंग टू लेट्स सी कोई इकोनॉमिक डेटा. आई थिंक कल एक और इम्पोर्टेंट डेटा आना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी जस्ट रीचेक अगेन. कल, आज तो tomorrow is export price index. No, I don't want this. कल जो इम्पोर्टेंट डेटा आएगा वो है मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स. कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स का लाना है which is expected to be 67.4. previous 68.1 था. अगर तो expected डेटा आता है तो inflation is going down, good for Bitcoin. But let's see what happens. आज का CPI was lower than expected. Was it? Yeah. हम लोगों को 28,485 पे रिजेक्शन मिली है. सो पिछले 10 दिनों में 6% बिटकॉइन गिरा है और हम लोग माइनर पुल बैक्स कंसिस्टेंटली देखेंगे. और 27, did I say 27? Next stop is 27. Sorry, 27 कह रही हूँ. 26. Next stop should be 26,000 तक हम लोग इसको गिरता देख सकते हैं. मेरे ख्याल से इतना नहीं गिरेगा क्योंकि डेली पे बुलिश हो जा रहा है ये. 4 hours पे it is 4 hours पे it is bearish और I think 26.3 is its next stop. गिरेगा ये भी क्योंकि जो 20 MA है वो 200 EMA को break through like cross कर जाएगी, नीचे आ जाएगी. So 20 MA will be below 200 EMA which is a bearish sign. 4 hours पे. डेली पे it's getting bullish क्योंकि डेली पे 20 MA जो है वो अभी भी 200 MA से ऊपर है. Are bulls in power or bears in power? On a daily chart bears may gain power, लेकिन इस वक्त on a 4 hours chart bears are in power. Sand or mana? Sand. I missed your signal this morning. No trades for the time being. चलो कोई मसला नहीं है, मिल जाएंगे signals. Trade भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा. Thanks a lot. Watching your videos on YouTube really helpful. Thanks a lot. I'm glad it's helping, Mariam. I'm so glad that it's helping. ADA is not a good investment token, I would say. ADA is a good अगर लिया हुआ ADA तो लिया हुआ है. Investment token इस वजह से मैंने इसको करती हूँ prefer because it doesn't move. It's a very slow mover. Project बहुत अच्छा है.
Which one is good between sand and mana? Please, I would go for sand, not decentralized mana. Thank you for the likes. Thank you so much for the likes. Yeah, so I would go for decentralized. I would go for sandbox and not decentralized mana. Not that your project अच्छा नहीं है. It's because if I have to choose between these two, which one has more probability of creating its ATH, I think that will be sand rather than mana. XRP कुछ शिराज अहमद, अब XRP का क्या पूछना चाह रहे हो? जब आप लोग मुझसे किसी टोकन का पूछो ना तो मुझे बताओ what you want to ask about it. सिर्फ नाम लिख के तो मुझको मैं कहती हूँ मुझे वही तो नाजिल होनी नहीं है कि मैं नाम आप लिखो और मैं समझ जाऊँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो. Ask me the questions. Be very specific. Just tell me last .coin. I don't believe in .coin. अली आप मेरी लाइव वीडियोस नहीं देखते हो? अगर आप मेरी वीडियोस पाबंदी से मेरे कंटेंट को वॉच करते हो तो यू शुड बी वेरी अवेयर दैट आई डोंट बिलीव इन डॉट. आपने कहा था कि XRP 0.66 तक जाएगा. हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था शिराज. उस वक्त जो मुझको चार्ट दिख रहा था मैंने अकॉर्डिंगली उस तरह कहा था. देखो तुम लोग काफ़ी सारे जो है ना लोग नए हो इस मार्केट में, ठीक है. मोस्ट लाइकली तुम लोग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को भी शायद इतना नहीं समझते. टेक्निकल एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ. मैं 3 एनालिसिस करती हूँ, फंडामेंटल, ऑन चेन एंड टेक्निकल. यहाँ पे मैं टेक्निकल की बात कर रही हूँ, ठीक है. स्पेशली दिस मैसेज इज फॉर द न्यू बीज, जो न्यू बिगिनर्स हैं क्रिप्टो में और वो ट्रेडिंग में भी नए हैं. वो TA टेक्निकल एनालिसिस भी उनके लिए नया है. ये मैसेज उनके लिए, ओके. जब मैं या कोई भी एनालिस्ट ये कहता है कि फला कॉइन इतने का हो जाएगा या इतने का गिर जाएगा या इतना ऊपर चला जाएगा, तो वो एनालिसिस हो रहा होता है उस टाइम के हिसाब से. मतलब टाइम्ड होते हैं. जो भी एनालिस्ट होते हैं वो हमेशा तुमको ये कहेंगे यू मस्ट हैव हर्ड ऑन अ 4 आवर चार्ट, ऑन अ 1 आवर चार्ट, ऑन अ डेली चार्ट, ऑन अ वीकली चार्ट. इसका मतलब ये होता है कि उस गिवन पॉइंट इन टाइम पे जो हम लोगों को डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स, आवरली कैंडल्स बता रही है ना, ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं, हम लोग उसके हिसाब से तुम लोगों को बताते हैं कि प्राइस ने यहाँ होना है, यहाँ होना है, राइट. अब होता क्या है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो मार्केट, दिस मार्केट इज हाइपर सेंसिटिव टू न्यूज़, नंबर 1. नंबर 2, दिस मार्केट मोस्टली रन्स ऑन इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, राइट. तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है इट्स प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स एंड पास्ट डेटा. जो हम लोग इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, दे मोस्ट ऑफ देम आर लैगिंग इंडिकेटर्स. फ्यू लीडिंग है, जैसे कि फिबोनाची, एलियट वेव्स, ये फ्यू है. बॉलिंजर बैंड्स, दे आर फ्यू ओनली, बहुत थोड़े हैं जो कि लीडिंग इंडिकेटर्स हैं. बाकी सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं. लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब कि जो पीछे हो गया है उसकी बेस पे हम लोगों को आगे इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं. गेटिंग मी? तो जब मैंने ये कहा था कि XRP 66 सेंट का हो जाएगा या XRP 50 सेंट का हो जाएगा, तो उस वक्त मुझको जो चार्ट्स बता रहे थे मैंने अकॉर्डिंग टू उस वक्त कहा था, राइट. एंड चार्ट्स कैन चेंज बिकॉज दिस मार्केट इज हाइपर सेंसिटिव टू न्यूज़ एंड दिस मार्केट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू द इन्वेस्टर सेंटिमेंट. लेट्स से अभी चार्ट मुझे बता रहे हैं 66 सेंट का आ जाएगा. और चूंकि SEC और रिपल लैब्स का एक लीगल बैटल चल रहा है तकरीबन 3 सालों से, 3.25 साल हो गए हैं, तो SEC की कोई भी खबर जो है ना सारे टेक्निकल एनालिसिस को इनवैलिडेट कर देगी. इन्वेस्टर सेंटिमेंट अगर अच्छी खबर नहीं है तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट विल गो नेगेटिव. दे विल स्टार्ट पुलिंग मनी आउट ऑफ XRP और XRP की प्राइस गिर जाएगी. मेक सेंस? यहाँ तक अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई है, स्पेशली जो यहाँ पे न्यूबीज हैं, प्लीज सेंड मी थम्स अप. बिकॉज मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए कंटेंट क्रिएट करते हुए, कम्युनिटी डेवलप करते हुए, एंड दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो. दे वांट टू, ऑफ कोर्स यू वांट टू लर्न. तो बेस्ट ये है कि सवाल पूछो मुझसे या जो भी तुम लोगों के फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं. गो एंड आस्क देम क्वेश्चंस. डोंट जस्ट अज्यूम, आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज द मोर यू गोना आस्क द मोर यू गोना लर्न. प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बेहतर है, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगी. आप ज़रूर जाके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करो. क्वांट कभी वापस जिंदा होगा? हाँ, क्वांट बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है. क्वांट पे शक भी मत करना. क्वांट, लिंक, मैटिक, इथेरियम, बिटकॉइन, इन पे शक भी ना करना. इन पे जरा सा भी शक नहीं करना. दे आर सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड, लाइक समथिंग जिसपे मैं अगेन इस वक्त एज पर डेटा राइट नाउ, एज पर फैक्ट्स राइट नाउ, जिन पे मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, जिन टोकन्स पे, आई रिपीट अगेन, बिटकॉइन, इथेरियम, क्वांट, लिंक, मैटिक, ये 5 टोकन्स हैं. और ऑफ कोर्स VRL तो है ये बिकॉज इट्स माई ओन, लेकिन चलो मैं VRL को I'll stay neutral, so I would not quote VRL here. लेकिन हाँ, again, Bitcoin, Ethereum, Quant, Link and Matic, super solid ones.
Please tell me about Cardena. Cardena is not going to do much because Cardena is not being doing much during the bear market. So जो projects bear market में नहीं perform कर रहे, I'm struggling to see कि वो bull market में किस तरीके से जिंदा होंगे. That's what I think. क्रिप्टो के आगे प्रॉपर्टी बच्चा है मेरे हिसाब से दुनिया का as per my opinion, and not just my opinion, as per all the facts and the data sets, जो best performing asset है so far for last I think 3 or 5 years or maybe 2 or 3 years, it's Bitcoin. ना property, ना gold, ना stocks, ना forex, ना precious metals, ना treasury bonds, you name it. You name the assets. The best performing asset for past few years is Bitcoin. And what about FTM? FTM is good. I believe in FTM. लेकिन देखो अब मैं believe तो मैं बहुत सारों पे करती हूँ, लेकिन जिनके बारे में मैं बहुत श्योर हूँ, like 100% श्योर हूँ, like अगर मुझसे तुम लोग कोई आके कहते हो कि हमारे पास $5,000 है या $10,000 है, and that's all we have, that is all we have, and like be very very sure कि आपको कौन से tokens पे तुम बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो, तो these five would be the ones. Hi सनी, कैसे हो? इसलिए बिटकॉइन और इथेरियम होल्ड फॉर किड्स. डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ कि दुनिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, हर फैमिली शुड एटलीस्ट ओन वन बिटकॉइन एंड फ्यू इथेरियम rather than wasting your money in properties. To me, properties में invest करना is waste. Why? Depreciating asset. Why? Inflation. Consistent inflation. Number one. Number two, जैसे आज लेट्स से मेरी प्रॉपर्टी 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, मैं बेचना भी चाहूँगी तो मुझे यही होगा. जब भी आप बेचने चाहो, मैंने तो यही सुना लोगों से, ऑल्दो आई डोंट ओन प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने लोगों से ये सुना, जब बेचने चाहो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, हालात ख़राब हैं, पैसे अच्छे नहीं मिल रहे. दैट्स मैंने हमेशा लोगों से ये सुना है. बिटकॉइन का ऐसा है ही नहीं. आप जब भी बिटकॉइन, आपको 2 से 3 साल की साइकिल में ज़रूर बिटकॉइन की अच्छी प्राइस मिल जाएगी. 2 से 3 की साइकिल में ज़रूर मिल जाएगी. अगर आप बिटकॉइन को 4 साल की साइकिल के लिए होल्ड कर लो, नॉट जस्ट बिटकॉइन, जो भी अच्छे परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो एसेट्स हैं, अगर आप उनको 4 साल के लिए भी होल्ड कर लो, यू आर गोना गेट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यू आर गोना डेफिनेटली गेट योर ROI. प्रॉपर्टी का अभी मार्केट अच्छी नहीं है, अभी मार्केट ख़राब है, अभी ये प्रॉब्लम हो गई, अभी वो प्रॉब्लम हो गई. बिटकॉइन इज़ द वन जो कि वॉर, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, ऑलमोस्ट रिसेशन, पैंडेमिक, हर मेजर ग्लोबल इवेंट को, डिजास्ट्रस इवेंट को, इट हैड बीन रिजिलियंट, इट हैड बीन स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, टॉल. और कौन सी हैं प्रॉपर्टीज तुम बेच सकोगे? अभी लेट्स से तुम अभी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, कैन यू सेल इट? सेल कर भी लोगे तो गिवन डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, GBP डिवैल्यू, सारी फिएट्स डिवैल्यू हो रही हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. व्हाट यू गोना गेट आउट ऑफ इट? डू यू गाइस एग्री? मुझे बताओ प्लीज, डू यू गाइस एग्री? बुल रन 2024. सोलाना का मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, एंड हेयर मी आउट. पिछले सोलाना इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. सोलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, सोलाना इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, गुड प्रोजेक्ट. लेकिन अगर हम लोग टॉप ऑल्ट्स में सोलाना को कंसिडर करते हैं, राइट, तो टॉप ऑल्ट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना टेक्नोलॉजिकल वाइज, वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे आई हैं. नंबर 1. Number 2, I am seriously struggling to see कि सोलाना अपना प्रीवियस ATH भी बना लेगा. क्यों? क्योंकि जो मेरा, ऑल्दो मेरा सोलाना पे काफ़ी बिलीव है और मैं हमेशा सोलाना कहती हूँ, लेकिन जो मेरा वेरी लेटली जो मेरा कंसर्न आ रहा है सोलाना को लेके, वो ये कि पिछले 6-8 महीनों में पूरी बेयर मार्केट में सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस आए, ऑल्दो दे मैनेज टू गेट थ्रू इट, बट स्टिल प्रॉब्लम्स थी. तो जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो अब लाइंड अप हो रहे हैं, क्योंकि बुल रन आने वाली है, लाइंड अप हो रहा है, ऐसे ऐसे एक्सचेंज लिस्टिंग हो रही है, इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोलाना को कम्पीट करेंगे विद न्यूअर टेक्नोलॉजी, विद मोर इनोवेटिव कॉन्सेप्ट एज इन होल विद इन देयर बिजनेस मॉडल्स, with more dynamic younger team of developers,
with more investor interest. क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग एन इन्वेस्टर मेरे सामने सोलाना का इसको कोई कॉम्पिटिटर आता है जैसे कि सुई, सो व्हाट वुड आई डू? अब बल्कि तुम लोग भी मुझे बताओ, शैल आई गो फॉर सुई बिकॉज उसकी प्राइस अप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोलाना। तो आई थिंक कि अगर तो सोलाना को तुम लोगों ने $18-20 का लिया हुआ है, यानी कि इस बेयर मार्केट में लिया हुआ है, तो फेयर इनफ, इट विल डू 100 मे बी $200, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों ने सोलाना को 2021 में लिया हुआ है विच वॉज अराउंड 259, तकरीबन $250-300 जो भी उसकी ATH थी, या $200 का भी लिया हुआ है, तो वुड यू मेक प्रॉफिट्स? वुड इट मेक इट्स क्रिएट इट्स ATH? आई एम स्ट्रगलिंग टू सी कि अपना ये दोबारा से ATH बना लेगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे बताओ। What is good buying range from FTM now? How much it can go more down? FTM की buying range, again having said that, if you think ke you still believe in Solana, by all means stick to Solana. But would I buy more Solana? I'm holder of Solana. Would I buy more Solana? No, I would not. यार FTM अगर मजीद गिरा ना तो ये जाएगा 0.17 तक, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ मैं फ़िलहाल इसको 4 आवर्स के चार्ट पे नहीं देख रही, 0.17। तो और इसको जो है ना इस लेवल से विच वॉज 0.1759 पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो गई है, और बहुत बड़ा बहुत बड़े बायर ऑर्डर लगा हुआ है 0.177 पे। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना नीचे जाएगा, बट अगर ये जाता है तो as I said 0.1712 पे FTM. God. Property conditions around the world are too bad to ever get your hands on a property. I do not believe in buying properties anymore. Property is an old school. प्रॉपर्टीज उस दुनिया में प्रॉपर्टीज बाय करना वर्थ इट था जब दुनिया पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ग्रो कर रही थी, सेटल थी, स्टेबल थी, विच आई थिंक वॉज 1960s एंड 70s आई थिंक। अगर कोई 1960s और 70s का है, माई डैड टेल्स मी कि उस ज़माने में जो ना दुनिया एज ऑल सारी इकोनॉमीज फ्लरिश कर रही थी, पॉलिटिकली बहुत स्टेबल थी दुनिया। तो आई थिंक उस ज़माने में प्रॉपर्टीज़ बाय करना वॉज वर्थ इट, कि जब लैंड की कीमत बढ़ ही रही थी। अब तो प्रॉपर्टीज़ आई डोंट नो, हाँ ऑफ कोर्स इफ़ इट्स योर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो ज़रूर उसको बाय करो, वाई नॉट। लेकिन ना मुझे मॉर्गेज समझ में आई है कभी कि लेट्स से अगर मैं 25 साल की हूँ, मैंने 25 साल पे मॉर्गेज ली है, तो मैंने अगले 25 साल या 30 साल तक मॉर्गेज पे करनी है, विच मीन्स दैट बाय द टाइम आई एम 50, 55, 60 तो मैं सारे हर मंथ मॉर्गेज पे कर रही हूँ। और लेट्स से आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कोई वर्थ ही नहीं है, इट्स डीवैल्यू। दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स हाउ आई थिंक। Gala Games, I wouldn't go for Gala Games because Gala Games के जो दोनों co-founders है, they have sued each other and they are fighting. एक co-founder दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि he had stolen 138 million dollars worth Gala, और दूसरा उसको इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये he has a history of dissolving the company. So they both are basically fighting, which means it's देखो when it comes to crypto IT के प्रोजेक्ट्स, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना IT प्रोजेक्ट्स के फेलियर्स का, इनफैक्ट किसी भी प्रोजेक्ट के फेलियर का 65 or 70% रीज़न यही होता है कि टीम कॉन्फ्लिक्ट, and that's exactly what's happening with Gala. So would I put my money in Gala? No, although I was firm believer of Gala, but not anymore. 100% right. We bought property 4 crore Pak rupee when dollar was 170, but now we want to sell this property. Exactly Nokia 73310. And I'm pretty sure पाकिस्तान के जो हालात हैं, let's say अल्लाह ना करे आपको कोई इमरजेंसी हो रही है, खुदा ना खास्ते कोई इमरजेंसी है, कोई लाइक सीरियस अल्लाह ना करे किसी के साथ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, आप प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं सकोगे ना, कैसे बेचोगे? यू हैव टू सेल इट फॉर लॉस। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के हालात ही नहीं है। या लेट्स से इवन अगर यूके में भी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, मैं उसको भी सेल करने जाऊंगी, मैं इसको कैसे सेल करूँ? इट्स लाइक बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड डीवैल्यूड करेंसी, इट्स नॉट वर्थ इट। यार मैंने क्या नाम है आपका, लाइक
मोहम्मद लेक, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं डॉट के ऊपर, मैंने बहुत रिपीट किया। भाई प्लीज़ जाके मेरी वीडियोस देख लो प्लीज़, यू वुड गेट द आंसर। मैं यहाँ पे बैठ के फिर डॉट का शुरू कर दूँ तो जो बाकी क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। मैं वीडियोस बनाती अपने लिए थोड़ी हूँ, तुम लोगों के लिए बनाती हूँ, सो गो एंड वॉच दैम। केक इज़ वेरी गुड, केक किया। XRP तभी पंप करेगा जब कोई खबर अच्छी आएगी रिपल लैब्स की। इथेरियम हाउ लो इट कैन गो बिफोर मी सी रिकवरी, इट्स एट 1521 नाउ। ईथ 1532 का इस वक्त है, अब बाइनेंस पे तो 1532 का है। ईथ कहाँ तक गिरेगा? इसको यहाँ पे सहारा मिल जाना चाहिए। इट शुड गेट सम सपोर्ट है। अगर यहाँ से गिरता है तो नेक्स्ट स्टॉप इज 1380, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर इसको चैनल है गिरने का, लेकिन आई डोंट थिंक सो यहाँ से गिरेगा। हो सकता है बहुत यहीं पर रेंज कर जाए, बायर्स इसको मिल जाए इधर ही। लेट मी सी, एक चीज़ बताती हूँ तुम लोगों को। या 4 hours, आई थिंक इट शुड गेट इट्स सपोर्ट हेयर 1533 पे। बाइनेंस पे तो 1533 है प्राइस इस वक्त, 1533। हाँ, लेट मी चेक इट्स RSI। RSI is extremely sold. Don't forget the RSI, बहुत अच्छा टूल है। इसका RSI भी एक्सट्रीमली ओवरली सोल्ड, ओवर सोल्ड क्या कहते हैं whatever। और बिटकॉइन का भी RSI देखकर मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अच्छा याद आया मुझे। एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड बिटकॉइन, इनको यहाँ से मिलना चाहिए सहारा एज पर टेक्निकल्स, अनलेस कोई बुरी खबर मार्केट में नहीं आती है। एज पर टेक्निकल्स AXX के बारे में बताएं, बुल मार्केट में कितना जा सकता है? मुझे AXS से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है अब, क्योंकि ऑलमोस्ट बेयर मार्केट ख़त्म होने वाली है और अभी तक AXS कुछ नहीं कर पा रहा। $6 $7 so far as high as I can see. Not much hopeful with AXS anymore. Market will crash if the war goes crazy. No, market will not crash if the market will crash. Market will not crash if the war goes crazy. और मैं क्रिप्टो मार्केट की बात कर रही हूँ। You're welcome, MK. Any good related project other than fetch.ai? Fahim, DBC, Deep Brain Chain. Homies token, I don't know about Homies token. I don't want to talk about Homies token at all either. I don't know about Homies token. मुझे likes तो भेजो यार, तुम लोग के likes क्यों नहीं आते? Keep sending the likes. I should see the hearts going from here there. Which coin is best for 5,000 investment right now? Mr. Loser. VRL. That's my own project. It's VRL. No yet. We are only here. VRL, any competition similar project in the market? Not yet, Fahad Qureshi, not yet. अभी तो कोई भी नहीं है। हाँ, H&T is close to what we do, but it's in the US और उनकी technology, they are not integrating, I don't think so they are integrating 5G with blockchain. I don't think so they're integrating 5G with blockchain. And we are mobile data network. We're mobile data network. इस टाइम 70% लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए? सबर। I'm not agreeing with your thoughts about property. Okay, Kulvinder Singh, okay. Don't agree. You don't have to agree with everything or anything I say. I mean, actually, don't agree with anything and I'm perfectly fine with it. मेरे अपने views हैं, आपके अपने views हैं. Thoughts on market? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान. Market is like dead. Not dead actually, गिर रही है इस वक्त market. But it should get some sahara. It will get some sahara, don't worry. क्योंकि कल मिशिगन consumer sentiment आ रहा है.
The previous one was 68, or forecast is 67.2, which will be good for Bitcoin tomorrow 13th of October. So yeah. Yep. I think मुझे मेरे क्योंकि जिस तरह prices गिर रही है ना for no reason, this could be market manipulation. तो please trade मत करो क्योंकि we don't know. फिर वही बात कि institutions are coming because of the Bitcoin spot ETF approval, and they don't want to buy Bitcoin at 27 or 28 or 29. They want to buy Bitcoin at 24, 25 is their ideal buying price. So they will bring it down for little. उससे दो फायदे होंगे. Exchanges को फायदा होगा ऑब्वियसली. नंबर वन, लॉन्ग्स को वो लोग लिक्विडेट करेंगे या शॉर्ट्स को वो लोग लिक्विडेट करेंगे, लाइकवाइज ऊपर नीचे दोनों तरफ, और इंस्टीट्यूशन सस्ता बाय करेंगे. दैट्स व्हाट आई थिंक इज गोना हैपन. तो डोंट ट्रेड, बेस्ट इज नॉट टू ट्रेड. व्हाट अबाउट LQTY coin kind of hybrid? I don't know about LQTY. What's LQTY? Let's see. Liquidity. What is that? Decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. अपने stable coin की promotion. Okay. It's a USD pegged. Okay. Basically what they are doing is कि उनका अपना stable coin है called LUSD, which is a USD pegged stable coin. And they use Ethereum as collateral, और उस पर आपको 0% interest loan देते हैं. It's a good use case. अच्छी utility है इसकी. Use case अच्छा है इसका. It has got potential. It has got a lot of potential. Although मैं इसको सिर्फ अभी आपके सामने बैठ के पढ़ रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. कौन सी exchanges पे? Let's see. Charts भी strong बता रहे हैं. Binance पे, Qcoin पे, Hobai पे है, OKX पे, Gate.io पे. Okay. सारी अच्छी एक्सचेंजेस पे, सारी मेजर सेक्सेस पे. गुड. चार्ट्स भी इसके स्ट्रॉन्ग हैं. $4 से $5 ही कर सकता है. LQTY गुड वन, वेरी गुड वन. इसकी यूटिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसकी यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग. इट हैज़ अ वेरी गुड यूज केस. अगर बिटकॉइन बुल मार्केट में 90,000 का हो जाता है, अगर तो बिटकॉइन, assuming that Bitcoin is 90K in next bull market, तो will it fall down to 25K? हो सकता है हम लोग 20-25 हज़ार का एक बहुत बारीक सी विक देखें, जो हम लोगों ने 15,000 की देखी थी इस बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में इन जून. इस तरह अभी हम लोगों को 29 का एक बहुत 27-26 का एक बहुत अच्छा बॉटम मिल गया हुआ है ना. पहले 22 पे 27. इस तरह मुझको लगता है हम लोगों को 30-35 का एक अच्छा बॉटम मिल जाएगा इन नेक्स्ट बेयर मार्केट. क्योंकि देखो आने वाली जो बेयर मार्केट है ना, वो उस वक्त आएगी जब इंस्टीट्यूशंस और जब हेज फंड्स आ चुके होंगे इस मार्केट में. डोंट फॉरगेट दैट. आज तक हेज फंड्स क्रिप्टो में नहीं आए हैं. आज तक हेज फंड्स क्रिप्टो में नहीं आए हैं. ठीक है, आई रिपीट इट. आज तक की किसी भी बुल बेयर मार्केट में हेज फंड्स नहीं आए. अब हेज फंड्स आने वाले हैं बिटकॉइन स्पॉट ETF के अप्रूवल के बाद. सो वुड दे इतनी ये लोग मार्केट को नीचे गिराएंगे? क्योंकि उन लोगों ने उन हेज फंड्स से अपने क्लाइंट्स को भी तो खुश रखना है ना. वो उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, उनको एयरली गेन्स प्रॉमिस कर रहे हैं, या व्हाटएवर जो भी उनकी TNCs हैं, जो भी उनकी सेलिंग व्हाटएवर है. तो अगर आज एक लेट्स से आज मैं बिटकॉइन मुझे 27K पे पड़ा है, राइट, और मैं अगली बेयर मार्केट में इसको 20-25 का देखूंगी, तो आई विल नॉट बी हैप्पी. आई डोंट थिंक सो 20-25 तक का जाएगा बेयर मार्केट में, नेक्स्ट 26 की बेयर मार्केट में. बट लेट्स सी. प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय इंटीग्रेटिंग 5G विद ब्लॉकचेन. तो यूके के अंदर 5G नेटवर्क आ गया हुआ है. 5G मोबाइल नेटवर्क है, राइट. तो हम लोग अब जो डेटा मोबाइल डेटा पैकेजेस आप लोगों को देंगे थ्रू वर्चुअल एक्स, they will be all 5G enabled network, जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करेंगे. हम लोग की डैप्स ब्लॉकचेन पे डेवलप होंगी. जो आप लोग VRL हर टॉपअप पे अर्न करोगे, दैट विल ऑल बी लोकेटेड ऑन ब्लॉकचेन. Who's up or down? I'll go. Latcoin, please enter 67, still pulling back.
सबर, लाइट कॉइन के लिए भी सबर करो, जाएगा, दोबारा से जाएगा, $200-300 का होगा बुल रन में इंशाल्लाह. GLMR price prediction in the bull run. I don't believe in GLMR. I don't even think GLMR is going to do anything. What do you think of Chainlink? Chainlink is very strong. What's up? Chainlink is super strong, very strong. I think very high of Chainlink. Solana is my soul. Acha, chalo. What is the ticker for Virtual X? VRL. VRL मेरे उस पे भी लिखा हुआ है नाम पे, DP पे, और इस लाइव पे भी तुमने देखा होगा VRL. कैसी है सामा? What will be the difference between traditional telecom and VRL 5G blockchain advantages? The difference is कि जब आप traditionally अपना जाके 3 मोबाइल से या 3 नेटवर्क से या गिफ्ट कैप से या वोडाफोन से आप अपना टॉप अप कराते हो, so you just pay them £5, £10, £20, whatever, and you get the data, right? With VRL, with Virtual X, you're gonna top up the data. Number one, आपको बहुत competitive packages मिलेंगे. So let's say you want 6 GB data, you're gonna get 6 GB. जो हम लोगों के packages आएंगे जो अभी decide नहीं, of course वो work के साथ decide होंगे, but they will be very very competitive. Number one. Number two, आप eSIMs use करोगे, which means that you will be contributing towards the bringing the carbon footprint. Number two. Number three, traditionally you don't get any what do you get when you reward, right? लेकिन हम लोगों के साथ you're gonna earn VRL. Each time you're gonna top up, you're gonna earn VRL, जो कि फिर आप अपने उनको ट्रेड कर लो एक्सचेंजेस पे जाके up to you, या आप उनको एज एन एसेट होल्ड कर लो. That's the difference. AGIX. Okay, good. अच्छा है. मेरा €8,000 माइनस है क्रिप्टो पे. मैंने तो किसी को भी मशवरा ना दूं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है. अच्छा, तो उस्मान, मुझ में आप में बहुत फ़र्क है ना. मुझ में आप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. मैं यहाँ बैठ के दुनिया को फेस कर रही हूँ, तो कुछ तो मुझे पता होगा ना जो मैं फेस कर रही हूँ और बता रही हूँ. और मशवरे नहीं दे रही हूँ, मैं एजुकेट कर रही हूँ. नंबर वन, मैंने किसी को कोई मशवरे नहीं दिए. आई एम जस्ट एजुकेटिंग. दिस डिफरेंस बिटवीन गिविंग एडवाइजेस एंड शेयरिंग ओपिनियन एंड एजुकेटिंग. आपको देखकर मॉर्निंग अच्छी हो जाती है. थैंक यू सामा. थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ यू सामा. I have received messages from 3 fake accounts in the morning in your name. I have abused them. क्यों टाइम ज़ाया करते हो? रिपोर्ट ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो. I don't think so that is going to do anything, Kamal. From where we can buy VRL? From their website. You have to make an account on PancakeSwap, buy BNB. Go to their website and वहाँ से खरीदो. And if you want a video how to buy VRL, तो मुझको टेलीग्राम पे पूछ लो. बल्कि मैं भी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ. राइट? इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. वहाँ पे जाओ और how to buy. If you are still not sure, मुझको DM करके पूछ लो, मुझको या वकास को. I don't know, आप पहली दफ़ा मेरे लाइव पे आए हो, I don't know, लेकिन आप मुझसे DM करके पूछ लो and I explain it to you. $8,000 पे रो रहे हैं, मेरे 20,000. मेरे लॉस का पूछोगे ना तुम लोग, मेरे लॉस का तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है. नहीं, मेरा खैर इतना लॉस नहीं है, लेकिन मैं जून में आई वाज एट ब्रेक इवन. लेकिन हाँ, ट्रेडिंग कुछ ऐसी मैंने ट्रेड स्टूपिडिटली खोल ली हुई थी जिनमें मैं अभी स्टक हूँ. लेकिन एनीवेज, डोंट वरी, यू विल गेट देयर. Blockchain 5G technology, will it be faster than traditional 5G net telecom we have at the moment? देखो, 5G itself is a very faster one than 4G, obviously, and it all depends on the network. क्योंकि हम लोग अपना तो network launch कर नहीं रहे, ठीक है? We are not launching our own network. What we are doing is we will be cooperating जो existing networks है उनका best हम लोग लेंगे, and then we will come with competitive packages. And you're going to earn VRL. So why would someone, एक आम आदमी के लिए, भूल जाओ ब्लॉकचेन को, भूल जाओ डिसेंट्रलाइज एप्स को फॉर नाउ. एक आम आदमी क्यों आके भी मोबाइल से खरीदेगा, टॉप अप कराएगा? क्यों कराएगा? इस वजह से कि ही इज गोना अर्न VRL, और फिर वो अपने VRL होल्ड करे और फिर उसको वो 6 महीने 2 महीने
डिपेंडिंग ऑन वीआरएल की जो भी प्राइस चल रही है बेच दे। आपने टॉपअप कराया 10 पाउंड का एज एन एग्जांपल अपना मोबाइल डेटा, तो आपने सिर्फ 10 पाउंड का टॉपअप नहीं कराया, आपको सिर्फ मोबाइल डेटा नहीं मिला जो कि आपने यूज़ करना है, कनेक्टिविटी, हायर कनेक्टिविटी, फास्टर कनेक्टिविटी इंस्टेंटली। जैसे ही आप यूरोप में फिलहाल फॉर स्टार्टर्स व्हेन यू लैंड इन यूरोप, you will be still with 3 for example, sorry, you will still be with V mobile, right? आपको वहाँ के नेटवर्क पे नहीं स्विच कर देंगे हम लोग, आप यहीं के नेटवर्क पे रहोगे, नंबर 1। नंबर 2, you are earning VRL with each top up, you're earning VRL with each top up। अभी जैसे मैं जैसे like I'm flying to Dubai, जैसे ही मैं लैंड करूँगी, the most annoying thing I get is मैं यहाँ पर 3 के साथ हूँ, वहाँ पर जाके मुझको वैतसलात पे लगा देंगे, एतसलात पे डाइवर्ट कर देंगे, और फिर उनके अनोइंग मैसेजेस कि ये टॉप अप कर लो, इतना डेटा हम तुम्हें दे रहे हैं, सुपर अनोइंग, राइट? व्हेन यू लैंड इन अ फॉरेन लैंड, व्हेन यू लैंड इन अ फॉरेन कंट्री, द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज गेट कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? फिर वहाँ की आपकी रोमिंग चार्जेस पड़ते हैं, whatever, and I'm not earning any rewards to be loyal to V Mobile or 3 or Vodafone or whatever. I'm paying them every month, but I'm not getting anything out of them, excluding the mobile data। और वो भी कुछ जगहों पे मैं ट्रैवल करती हूँ यूके में, स्पेशली अप नॉर्थ, 3 इज़ सो थका हुआ नेटवर्क वहाँ पे। जितना आप लंदन के करीब हो 3 इज़ बेटर, लेकिन जितना आप लंदन से दूर जाते रहते हो, आई एम नॉट इन लंदन बट आई एम क्वाइट नियर टू लंदन, तो इट्स गुड। लेकिन जैसे जैसे आप अप नॉर्थ जाते हो इट्स अनोइंग। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हम लोगों के साथ नहीं मिलेंगे इफ़ यू आर गेटिंग इट, सो देयर विल बी नो रोमिंग। आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कोई रोमिंग चार्जेस होंगे। देखो अभी हम लोग मोबाइल नेटवर्क के साथ बात कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल हम लोग टॉपअप्स पे हैं, पे एज यू गो पे हैं। इंशाल्लाह आई थिंक आई एम होपिंग दैट वी आर गोना गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। वी आर एक्चुअली बिडिंग विद 4 नेटवर्क्स, वी हैव ऑलरेडी बिड विद 4 नेटवर्क्स एंड वी आर होपिंग टू गेट गुड डील्स। उनके साथ हम लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस रहती है, देन वी आर गोना एक्सपैंड इनटू contracts। I'm not exactly sure, Vakas is more knowledgeable about it because he's the one who's actually dealing with all these networks things, और उसके पास टेलीकॉम की बहुत अच्छी knowledge है, he's done his masters in telecom। So yes, we have plans, and I'm hoping that there will be no roaming charges because you will still be with V Mobile. You would not be with any other network in Europe or in Dubai or wherever US, right? So that's what I'm hoping. Yeah, when we will be able to get the V Mobile services, I'm excited to be the customer. हाँ बिल्कुल, तुम लोग subscribers बन जाओगे इंशाल्लाह, और we are hoping Q1 2024. I hope I'm not sounding too ambitious, but so far that's our plan, Q1 2024। but yes, project delays are very norm। तो मैं तुम लोगों को अभी से एजुकेट भी कर रही हूँ। जब मैं कहती हूँ कि एक्सचेंज लिस्टिंग इज़ इन 4 to 12 वीक्स, तो मैं एक बहुत वाइड तुम लोगों को दे रही हूँ। ऑल्दो आज भी मैंने और वकास ने, हम लोगों ने कोई तकरीबन 3 घंटे डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ बातें की हैं, एंड आई एम गोना सी फ्यू एक्सचेंजेस इन दुबई। आई सी देम फेस टू फेस to get the best deal out for us। तो या तो hopefully ये milestones इसी तरीके से चलते रहें। We will be launching in Q1 2024, but please don't forget कि there are many factors in play for us to achieve the milestones। So if it's not Q1, definitely it will be Q2, but we are very hopeful and very persistent that we do get it by Q1 2024 inshallah। तुम लोग दुआ करो, तुम लोग साथ रहो, तो yes। When you are coming to Dubai, I'm traveling to Dubai from 16th, so I'll travel on 16th, so I will be there from 17th to 27th। I'll reach 17th morning, so 17 से 27 October I'll be in Dubai। So as long as the country is VRL compatible, so roaming will not be charged and the other country is on VRL। This is exactly what I'm saying कि जब तुम लोग UK से किसी और country में जा रहे हो and you are with V Mobile, you don't have to switch the network, तो roaming क्यों पड़ेगी, ठीक है? लेकिन Vakas knows it better than me। Vakas knows it better than me, so I don't want to say anything that I'm not exactly sure about। XRP price increase during bull run, definitely। XRP is just waiting for the Ripple Labs का case settle हो जाए, and XRP is going to do good। So the question is कि when they will be going to the country, they will not be paying roaming charges, is that correct?
Well, it all depends on the network that we connect with. Okay, majority of the time you will be able to use your UK package allowance, so unlimited minutes and text. Okay, abroad in 27 EU countries. It doesn't mean all over the world. Okay, within the Europe, 27 EU countries. Yeah, you should be able to use your allowance. So far चूंकि हम लोग यूरोप में एक्सपैंड करें to for starters हम to लोग decide. अभी यूके ईयू बेस्ड है। हमने अभी अमेरिका की और बाकी वहाँ पे मिडिल ईस्ट वगैरह के नहीं किया, अभी यूके ईयू बेस्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग विद यूके, हम लोग यूके में तो अपना अलाउंस यूज कर सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड सब कुछ। और यूरोप के अंदर क्योंकि हम लोगों की आगे पार्टनरशिप आ रही है डिफरेंट नेटवर्क के साथ, हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप करेंगे इस नेटवर्क को, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी के लिए तो इतना ही है, लेकिन हर कंट्री में नहीं यूज कर सकते आप। So across Europe, there will be in those 27 countries there will be no roaming charges. Is that correct? रोमिंग चार्जेस, यस, अपेरेंटली यस। हम लोग कंफर्म नहीं कर रहे क्योंकि अभी आप तो ये तो ऐसा ना जैसे कि टेलीकॉम का क्वेश्चन हो गया ना, अभी तो क्रिप्टो रिलेटेड बात करें, प्रोजेक्ट चल पड़े। एटलीस्ट प्रोजेक्ट इतना कर रहा है अभी। आप ये हमारे कंपेटिटर जो एक हमारे कंपेटिटर तो नहीं बनता, हम लोग तो बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं ना। हीलियम मोबाइल है, वो एक लंदन के छोटे से एरिया के अंदर, लेकिन साउथ हॉल के अंदर भी नहीं वो चलता, इतने छोटे एरिया में नहीं चलता वो। तो हम लोग तो पूरे यूके में लॉन्च कर रहे हैं, इसी को अप्रिशिएट कर ले, बड़ी बात है। वेलकम सलाम भाई। Appreciation यहाँ पे अप्रिशिएट कर लो, नहीं करते कोई मसला नहीं। मैंने बोला ना कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया, आप अपनी कम्युनिटी को सबसे पहले बता दिया, ठीक है। अभी मैं हर रोज, मैं और अफशीन, हम लोग जैसे मैं अफशीन आपको एक्सचेंज की वो कम्युनिकेशन में आपको टैग करता हूँ, कम से कम 10 से 12 एक्सचेंजेस इस टाइम हम लोगों के साथ इन टच है, ठीक है। वो कह रहे हैं हमारी 2 मिलियन की कम्युनिटी है, हमारी 5 लाख की कम्युनिटी है, हमारी इतनी कम्युनिटी है। अभी एक एक्सचेंज ने हमें बताया कि आप हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन्स दें, हम लोग विद इन मिनट्स वो सारे सेल कर देंगे। तो हमें अपने बंदों को, अगर अपने बंदों को समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने कोई इतनी किसी को फोर्स थोड़ी किया। लेकिन एक बारी जब ट्रेन छूटेगी ना, फिर वापस आएगी नहीं, क्योंकि वो फिर एक हमारी प्राइस जब हम लोग लॉन्च पैड पे चले गए, उसके बाद हम लोगों ने अगला एक्सचेंज लिस्टिंग, ठीक है, वो एक जो प्राइस होगी उसके बाद फिर आगे हम लोग फिर रिवर्स नहीं कर सकेंगे। तो अभी के लिए वीआरएल प्राइस प्रोडिक्शन इन बुल रन। जिशान अहमद, हम एज अ प्रोजेक्ट ओनर प्लस एफसीए के रूल्स आके हम लोग कोई इस तरह की प्रोडिक्शन वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ये देख लो कि बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में मीम कॉइन यार आप इजी उठाओ 10 20 50x कर जाते होते हैं, ठीक है। ये तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई छोटी चीज़ भी नहीं है। तो आप इसको हिसाब लगा लो, अंदाज़ा कर लो क्या होगा। What will that be, the top tier package or all the packages roaming in 27 EU countries? फात कुरैशी, बहुत ज्यादा इसके बारे में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पैकेजेस, आप उसके पैकेजेस को छोड़ दो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट लॉन्च होगा यूके में, जिस तरह के नेटवर्क है उनसे अच्छे ही होगा, ठीक है। प्लीज प्रीसेल कब होगी टोकन की, कोई टाइमलाइन? प्रीसेल चल रही है, फला मलिक, प्रीसेल चल रही है, या प्रीसेल इज रनिंग, वी आर रनिंग द प्रीसेल। कभी कभी होता है ना, आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ओनर्स ही सामने नहीं आते, ठीक है ना। आप उनसे क्या ज़्यादा जाके उनके मॉडरेटर से आप पूछ लोगे कि आगे क्या है, वो कहेंगे आप जाके रोड मैप पढ़ो। हम लोग इतनी डिटेल में बता रहे हैं, हम जब डिटेल में बताते हैं तो फिर उसकी निटी ग्रिटी, अच्छा उसमें आप बैठ के काम करेंगे, कुर्सियाँ कितनी होंगी, ऐसे थोड़ी होता है। या वो कितने, आप शुक्र करो यूके में चल जाएगा, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, अगर मोबाइल नेटवर्क यूके में चल रहा है बड़ी बात है। 27 रोमिंग कंट्री को फिर पूछ रहे हैं वहाँ पे बाइंग इज इनफ। जीशान नहीं तो 100 का देख लो, फिर आपका उसका 300-400-500 बनेगा। हु राइट द कोड फॉर द वर्चुअल इज इन इट्स ऑन गिटहब। जी गिटहब पे भी होगा। हाउ टू बाय द टोकन, हाउ कैन यू गेट इन प्रीसेल DXB 30। आप अपने क्या कहते हैं ना, मेटामास्क में BNB सेंड करें, और मेटामास्क के अंदर जो ब्राउज़र है उसी पे जाके virtualx.uk पे जाएं, वहाँ से प्री सेल बाय कर सकते हैं आप डायरेक्टली। Very hard work, both of you. Thank you so much, Ehsan Ali. थैंक यू MK भाई, थैंक यू एहसान। We need lots and lots of duas. एग्जैक्टली। अफशीन अभी जा रही हैं, अफशीन इतनी बिजी हैं, वो दुबई जा रही है, वहाँ पे कितने इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो होते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर या फिर सीड इन्वेस्टर्स बोलते थे, जो कि बड़ी लमसम में इन्वेस्टमेंट करते होते हैं और फिर एंड में जाके उनको रिजल्ट मिलता होता है।
तो ट्रस्ट द प्रोजेक्ट हम लोग फोर्स नहीं करते किसी को बाय करने का। मैंने बल्कि अफशीन को भी कितनी बारी बोला कि मैंने कहा आप अगर नहीं इस बारे में कोई ज़्यादा कन्विंसिंग चाहता है तो छोड़ दें इस बात को, क्योंकि आगे की अभी आज अफशीन कितने आपने 3 घंटे लगाए थे एक्सचेंजेस के साथ जो मैंने कन्वर्सेशन की थी, आपने उसको पूछा और फिर उनसे क्वेश्चन पूछे, उनकी आपने एक कम्युनिटी देखी थी मिलियंस के अंदर, आपने खुद देखा है ना, मैंने बता रही थी इन लोगों को कि when I'll be मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर, उन्होंने उनको जो जैसे जैसे पैकेजेस दे रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। हम ऑफ कोर्स हम लोग पैसा लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने ज़ाती तौर पे कितना पैसा लगा चुका हूं अभी तक, और हम लोग पैसा लगाए, लेकिन उनके फॉलोअर्स देखो, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को सेल करने की जरूरत ही। एक्सचेंजेस बाहर बैठी हैं उनके डेडिकेटेड, एक एक्सचेंज थे, अफशीन ने खुद पढ़ा, वो कह रहे हैं कि हम विद इन मिनट्स आपकी जो टोकन आप हमें देंगे ना वो सेल हो जाएंगे विद इन मिनट्स। Because जो सही इन्वेस्टर होता है ना, जो एक्चुअल इन्वेस्टर होता है, अगेन वी आर नॉट ट्राइंग टू, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग हियर, आई एम नॉट अ सेलर, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, आई एम नॉट ए सेल्स पर्सन, आई डोंट इवन वांट टू कॉल माई सेल्फ काश एन। यही मैं आप शादी शादी आप मुझे डीएम करो, आपकी शादी का इंतजाम कर देंगे। लिखा हुआ है कोई शिया रिश्ता है फॉर शिया ब्रदर, वन ऑफ माय फ्रेंड इज 43 ओल्ड नेवर मैरिड। भाई यार 43 ओल्ड में नेवर मैरिड, तो उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं होगा, उसको उम्र हज पे भेजो, उसको को बस वहीं बैठा रहे अब। और शिया शिया का रिश्ता नहीं, हम लोग फर्का नहीं करते दीन के अंदर, सुन्नी चलेगा, सुन्नी भी चल जाएंगे, शिया भी चल जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। खास तुम भी ना सही की। भाई जनाब जो आगे रिश्ता मांग रहे फिर उनको रिश्तों ने एडवाइस देनी है ना। अरे आप शिया हो, शिया सुन्नी का कोई चाहिए, कहना बाय सम सुई नाउ सुई जस्ट वेट फॉर बुल रन बाय दे विल बी बाय टॉप टॉप ऑफ ईयर लाइक वी आर यूज्ड टू बाय। सही कहा, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। वो कहा ना, देखो मैंने वीआरएल का इतना पुश करते नहीं, देखो मैं इतनी लाइव में आके सेल की बातें करते नहीं होता, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को एक बार पिच कर दिया, सियाने बंदों को समझ आ जाती है, नहीं किसी ने समझना तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि कल को मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लेना चाहता वीआरएल को क्या हो गया, बल्कि मैं आज सोच रहा था अफशीन, वंस ये एक्सचेंज को हिट कर जाएगा ना, और जितने भी अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने पैसे बना लिए, उसके बाद वीआरएल के टॉपिक को छोड़ देंगे, क्योंकि वीआरएल कम्युनिटी के पास छोड़ेंगे, हम लोग उसको इतना इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते कि उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाए, ठीक है ना। I'm not even bothered, to be honest. I'm not even bothered. I'm just doing what I'm doing. I mean, वो मेरे तो आज हिसाब से तो कम्युनिटी है। bringing VRL to you guys is an opportunity, but if you don't want to take it, it's up to you. We're not selling here. We're not salesmen. मैं अपने आप को influencer भी नहीं करवाना चाहती. I'm an educator. I'm just an educator. सही कह रहे हैं, वही कहा ना, ऑफ कोर्स फाद भाई कम्युनिटी पे छोड़ देना, फिर पता है इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना, हम लोग प्रोजेक्ट बोले ना कि हम बोले, प्रोजेक्ट ये पार्टनरशिप कर रहा है, प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ बोले ना कि हम लोग है ना वैसे ही मुफ्त में ना, कुछ लोग है ना बातें करते काम नहीं करते, मैं तो ज़्यादा बातें कम काम ज़्यादा करो बैकग्राउंड में। Do you have Twitter account? Please share the link. पैसिव इनकम हम लोगों का ट्विटर अकाउंट है, अफशीन आप अपना देना करेंगे, हमारा टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है अफशीन की बायो में, टिकटॉक की बायो, मेरी टिकटॉक की बायो में, आप वहाँ से ले सकते हैं। अफशीन आप मैरिड हो, यू आर सो प्रिटी। कशिश यार आप बात सुनो, आप रिश्ता लेने आए हो या देने आए हो, मुझे ये बताओ। पहले मुझे आप ये बताओ, फिर आपसे बात करते हैं, मार्केट ऊपर जाएंगे। कश्यप नाम है ना, कश्यप भाई तो वो दूसरा किधर गया जिसने किया था, Yes, a more. शादी का रिश्ता मांग रहा था, काश सईद, एक कशिश और काश सईद, आज के नाम के सबको रिश्ते चाहिए, प्रपोजल आ रहे हैं आज, तो वही कहा ना आज तो मार्केट छोड़ो प्रपोजल चल रहे हैं। आर यू गोइंग एनी, नहीं नहीं जूम शूम नहीं करते हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वालेकुम सलाम अहमद राजपूत, क्या हाल चाल है अहमद भाई। मैं रिश्ते लेने आया हूँ वकास भाई, नहीं नहीं रिश्ता लेने आया भाई। खुदा का वास्ता मार्केट बुरी चल रही है, रिश्ता फेल हो जाएगा, अभी ना करो, बुल रन में करना, कम से कम साल 2 साल बेगमो याशी करा सको। ऐसे की शादी करा दो, सबको थोड़ा ऐसे की करा दो। नहीं यार आज प्रकाश भाई है मैडम, आप एक स्वाजी जी बोले अहमद भाई, प्रकाश भाई मेरा के फिलहाल, ओ साइमन कह रही है मैंने भी $5,000 के वीआर ले लिए, वो साइमन छा गया आप तो, ये दे आर गोइंग क्रेजी आफ्टर गेटिंग लिक्विडेटेड, बिल्कुल। टेलीग्राम में तो बहुत स्कैम हो रहे हैं, नहीं 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 कोई स्कैम नहीं, हमारा ग्रुप में स्कैम नहीं है, हमारे तकरीबन 2000 मेंबर है ग्रुप के अंदर, वहाँ पे टेलीग्राम पे एक्टिव बंदा है, ट्रेडर है, अफशीन फ्यूचर ट्रेडिंग कराती होती हैं, स्पॉट पे हम लोग करवाते होते हैं। काश भाई मैंने, ठीक है साइमा आप मुझे बाद में मैसेज करना, ठीक है
वकास भाई रील रिव्यू अबाउट यार मैं इसको दोबारा देख के बताऊंगा आपको, ठीक है ना, विच इज गोइंग टू बी लिस्टेड फर्स्ट वीआरएल। आसम भाई वीआर यही तो बात है ना, अभी हम लोग 12 एक्सचेंजेस के साथ राब्ते में, ठीक है ना, तो अभी फिलहाल आपको बता नहीं सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि, लेकिन कोशिश करें कि मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लॉन्च पैड पे जाए और मल्टीपल एक्सचेंजेस पे सेम डे टोकन लिस्ट हो, ठीक है, एक एक्सचेंज पे ना हो, कम से कम 2 या 3 होनी चाहिए। क्या लिखा है, मैं कुछ डेज पहले आपको बोला था कि मुझे ईच सोल मैटिक एंड डॉट में होल्ड करना है तक। आकाश भाई बुलरन में सब स्टार्ट कब स्टार्ट होगी? बुलरन नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी। तो मैं आप कुछ बता सकती हो रियलिटी के बारे में? रियलिटी के बारे में सुना, रियलिटी की टीम दोबारा चल रही है, होमीज का मुझे नहीं पता। क्या ये अभी बिल्कुल सही टाइम है कर लूँ अभी की? नहीं अभी अहमद अभी ना करो, आप थोड़ा सा वेट करो, बीटीसी को थोड़ा रिट्रेस करने दो, तो उसके बाद इंशाल्लाह करना। आपका आपका कौन सा कॉइन? हमारा वीआरएल कॉइन है, वर्चुअल एक्स कॉइन है, जो कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क लॉन्च कर रहा है क्रिप्टो बेस्ड यूके और ईयू में। विकास भाई अपने टिकटॉक या ट्विटर हैंडल शेयर कर दो। यार मेरा जो मैं टेलीग्राम पे डाल टेलीग्राम दूँ। एम ए वकास है, ट्विटर भी मेरा पर्सनल जो है ट्विटर, वो मैं हमें एम ए वकास के नाम से होगा आई थिंक। मैं डाल दूँ टेलीग्राम पे। Yes, we is going to eat these 2 tokens इंशाल्लाह ताला। अवेलेबल कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग तब होती है जब एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, तो वो अभी प्री सेल की फेज में है। पैसिव इनकम वीआरएल प्री सेल की है स्टेज में, और फिर लॉन्च पैड पे जा रहा है कम से कम 1-2 एक्सचेंजेस में मिनिमम, और फिर वहाँ से फिर लिस्ट होगा वो। डॉट सही है लॉन्ग वीआरएल एक्सचेंज या टोनो? नहीं नहीं सनी भाई अभी नहीं, वीआरएल की एक्सचेंज के साथ आज 12 एक्सचेंजेस से हम लोग की चल रही है नेगोशिएशन कि उसकी लिक्विडिटी रिलीज टोकन की क्या प्राइस होगी, सारा कुछ। तो आज भी सारा दिन ये काम चलता था इंशाल्लाह ताला। हाउ टू बाय, आप अपने मेटामास्क में बीएनबी सेंड करें, और उसके बाद मेटामास्क के अंदर ही ब्राउज़र है, वहाँ पे जाएं, लिखें www.virtualx.uk, और वहाँ पे फिर है ना आप अपना वॉलेट कनेक्ट करो, बीएनबी को स्वैप करो वीआरएल के लिए, और टोकन्स आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे। हम लोग टोकन भी नहीं रोक रहे, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं टोकन्स रोक लेते हैं, हम लोग वो भी नहीं कर रहे।